امریکی اور ایرانی مذاکرات کار مفاہمتی یادداشت کے مسودے پر متفق، ایرانی جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے تیار ہو گیا۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ، ایکزیوس کے مطابق ڈیل ہوئی تو جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع ہوگی۔ ایران 30 روز میں آبِ ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹائے گا، آبی راستے سے بلا روک ٹوک آمد و رفت بحال کی جائے گی۔ امریکہ بھی ایران کی ناکہ بندی ختم کرے گا اور رپورٹ کے مطابق میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگز کے تحت ایرانی جوہری ہتھیار نہ بنانے کی ضمانت دے گا۔ ایرانی افزودہ یورینیم طلب کرنے اور جوہری پروگرام پر بات ہوگی، جبکہ امریکہ مذاکرات کے دوران پابندیاں اٹھانے اور ایرانی منجمد اثاثہ جات بحال کرنے پر بات کرے گا۔ ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف حملے۔ امریکہ کا 3 دن میں ایران پر دوسرا حملہ۔ ایرانی پورٹ بندر عباس پر بمباری، سینٹ کام کا 5 ایرانی ڈرونز فضا ہی میں مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکی اہلکار کو لاحق خطرات سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے بطور دفاع اپنے حملے کیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز کا موقف۔ حملوں میں میزائل لانچنگ سائٹس اور ایرانی کشتیوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایرانی تنصیبات امریکی افواج اور آبنائے ہرمز میں تجارتی آمد و رفت کے لیے خطرہ بن چکی تھیں، سینٹ کام کا بیان۔ امریکی حملوں کے جواب میں پاسداران انقلاب کا کویت پر وار، امریکی ایئر بیسز پر میزائلز اور ڈرونز کی بارش کر دی۔ مزید حملے ہوئے تو رد عمل سخت ہوگا، ایران کا انتباہ۔ ڈرونز حملوں کے بعد کویت میں خطرے کے سائرنز بج اٹھے۔ کویتی حکام کا حملہ ور میزائلز اور ڈرونز دفاعی نظام مار گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے امریکی حملوں کے جواب میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے بندر عباس حملے کو بین الاقوامی قوانین اور ایران کے خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت فیصلہ کن کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل وقائی کا رد عمل، امریکی صدر کی دھمکیوں پر عمان سے یکجہتی کا اظہار۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کویت پر ایرانی حملہ جنگ بندی کے خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کویتی فورسز نے ایرانی بیلسٹک میزائل بر وقت مار گرایا، سینٹ کام کا بیان۔ سعودی عرب اور قطر کی کسی کا نام لیے بغیر کویت نے امریکی اڈے پر حملے کی مذمت۔ یو اے ای نے ایرانی حملہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ خلیج تعاون کونسل کی جانب سے ایرانی حملے کی مذمت۔ International waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. امریکی صدر نے ایک بار پھر ایران کے ساتھ سمجھوتا سعودی عرب، ترکی اور قطر سمیت کئی ممالک کے معاہدہ ابراہیمی میں شمولیت سے مشروط کیا۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں ایران سے جاری مذاکرات میں پیش رفت پر عدم اطمینان کا اظہار۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمان کو آبنائے ہرمز پر رویہ تبدیل نہ کرنے پر تباہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ دشمن فوجی میدان میں شکست اور قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے میں ناکام رہا۔ دشمن نے معاشی دباؤ، پروپیگنڈے اور سیاسی محاصرے کے تحت اندھا منصوبہ مسلط کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کا پارلیمنٹ کے نئے سیشن کے موقع پر پیغام، کہا جن کے دل اسلام، انقلاب اور ایرانی آزادی کے لیے دھڑکتے ہیں وہ متحد رہیں۔ قوم میں وحدت کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی ہدایت۔ ایران نے یورینیم افزودگی آبنائے ہرمز پر کنٹرول اور پابندیوں کے خاتمے کو مذاکرات میں ریڈ لائن قرار دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے واضح کیا کہ سب جان چکے ہیں کہ ٹرمپ اسٹریٹجک تعطل سے نکلنے اور خود کو بچانے کے لیے ایک دن دھمکیوں کا سہارا لیتے ہیں اور اگلے دن معاہدے کی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔
ईरानी बहरिया ने बनाए हॉर्मोज से अमरीकी तेल बरदार जहाज गुजरने की कोशिश नाकाम बना दी। वार्निंग फायरिंग के जरिए जहाज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ईरानी नीम सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक बंदर अब्बास पर हमला उसी कार्रवाई के बाद किया गया। अमरीका ने ईरान के खलीज फारिस अथॉरिटी पर पाबंदियां आयद कर दी। अथॉरिटी बनाए हॉर्मोज से गुजरने की दरख्वास्त का जायजा लेने के लिए बनाई गई थी। अमरीकी वजीर खारजा का ईरान पर मुआशी दबाव बरकरार रखने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन का अमरीका ईरान कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार। खारजा उमूर के सरबराह काया कैलास ने कहा कि जंग की तरफ लौटना किसी के मुफाद में नहीं होगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार 29 मई को वाशिंगटन का सरकारी दौरा करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात शेड्यूल्ड। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अहम शोबों में ताउन बढ़ाने और इक़्तिसादी और सिफारती रवाबित मजबूत बनाने पर गौर होगा। न्यूयॉर्क में वजीर खारजा इसहाक डार और चीनी हमसफ़ के दरमियान मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर तबादला ख्याल। चीनी वजीर खारजा ने मशरिक़ वसत में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पाक चीन देरीना दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी, कहीं ऊंट, कहीं बैल तो कहीं बकरे और दुम्बे ज़बह किए गए। दूसरे रोज़ भी शहरी कसाबों के नखरे से खूब परेशान नजर आए। भाई ने हमें दिया था 9 बजे का टाइम, इंशाल्लाह ताला 9 बजे हम आपके पास पहुंच जाएंगे। अभी उन्होंने हमें दिया है 11:30 से 12 बजे का टाइम। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे बच्चे बड़ी से इंतज़ार कर रहे हैं और लिहाजा कसाई आएगा हम काटेंगे। गोश्त लेने वाले भी हमारे पास इंतज़ार कर रहे हैं। कल के मेहमान आज बने मेज़बान। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ घरों में दावतों का एहतमाम। कड़ाही गोश्त, दम पुख्त, कीमा, बिरयानी और यखनी पुलाव से किचन महक उठे। ईद उल अज़हा पर पंजाब भर में ऑपरेशन क्लीन अप का दूसरा रोज़। आलाइशों को फौरी उठाने और ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी। सूबे भर से 1,24,000 टन से ज़ायद आलाइशों को ठिकाने लगाया जा चुका। गली महलों, बाजारों और सड़कों की सर्फ और फिनाइल से धुलाई। कुर्बानगाहों में अर्क़े गुलाब और चूने का छिड़काव। कराची के 7 अजला में सबसे ज़्यादा आलाइश जो है ना वो सेंट्रल से उठाई गई है। 7,000 टन से ऊपर। मैं एग्जैक्ट नंबर भी आपको दे दूंगा। तनकीद करने से तो मसाइल हल नहीं होते और मुझे तकलीफ इसी बात की है कि मैं मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ अभी। मेयर कराची ने आलाइशें उठाने में सुस्त रवि का इल्जाम यकसर मुस्तरद कर दिया। कराची में सबसे ज्यादा आलाइशें जिला बस्ती से उठाई गईं। गुज़श्ता रोज कुर्बानी शुरू होते ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा। मुर्तज़ा वहाब का शिकवा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, आलाइशें उठाने का काम का जायजा लिया। पूरा पाकिस्तान ईद की खुशियों में डूब जाता है। हम सरहदों पर जागते हैं, वतन का परचम लहराता है। तुम घरों में ईद मनाओ, हम नमाजों पे खड़े रहे। तुम्हारी हर मुस्कान की खातिर हर खतरे से लड़ते रहे। ये धरती माँ हमारी है, ये मिट्टी जान से प्यारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल से पाक फौज के अफसरान और जवानों की पूरी कौम को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। सरहदों के मुहाफिजों का पाकिस्तान का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने के अज़्म का वादा। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर ख़ज़ाना ने आइंदा वफाकी बजट में आवाम पर टैक्सेस का कम अज़ कम बोझ डालने की खुशखबरी सुना दी। कहा कोशिश होगी कि टैक्स बढ़ाने की बजाय इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस पर जोर दें। महंगाई में कमी के लिए मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। सियासी जमातें तनकीद बराए तनकीद की बजाय मुआशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में गुफ्तगू। कहा कि जिद्दत अपना कर ज़रई पैदावार में इजाफा मुमकिन है। हुकूमत खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुतहर्रिक है। आलमी सतह पर सिफारती कामयाबियों का एतराफ़ जारी है।
जब बलूचिस्तान में तकबीर की सदा बुलंद हुई और चागी के पहाड़ एटमी धमाकों से लरस कर सफेद हो गए, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत और इस्लामी दुनिया का पहला एटमी मुल्क बने 28 बरस मुकम्मल। 1998 में आज ही के दिन बलूचिस्तान के जिला चागी में पाकिस्तान ने भारतीय धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। पाकिस्तान को धमाकों से रोकने के लिए अमरीका और यूरोपीय ममालिक की जानिब से सख्त धमकियां दी गईं। पाकिस्तान ने दबाव में आए बगैर धमाके कर दिए। सदर और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर करार दिया और किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से पूरी तरह आगाह और मुकाबला रखने की सलाहियत है। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम वाज़ेह कर दिया कि एक जिम्मेदार और अमन पसंद कौम है। खुद इन्हिसारी, जद्दत और पेशावराना महारत के लिए सफ़र जारी रहेगा। किसी भी जारियत का फौरी, भरपूर और तबाहकुन जवाब देने का आज़्म। पाकिस्तान के कामयाब एटमी धमाकों से जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल हुआ। अजीम संग मील कौमी इत्तेहाद, इस्तिकामत और मुल्क खुदमुख्तारी की अलामत है। तारीखी कामयाबी मुदब्बिर क़यादत, साइंसदानों और इंजीनियर्स की गैर मामूली खिदमत की बदौलत मुमकिन हुई। कामयाबी पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद। मादिर वतन के दिफा के लिए हर किस्म के खतरात के खिलाफ अपने गैर मुतज़लज़ल आज़म का आदा। नवाज शरीफ बिका नहीं, झुका नहीं, अजीम शख्स की बेटी होने पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम तकबीर पर पैगाम। एटमी मिशन अंजाम देने वाली टीम के हर फर्द को सलाम। यौम तकबीर कौमी खुद मुख्तारी, दिफाई ताकत और कौमी यकजहती की अलामत। दुश्मन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आला सिंध की कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क लेकिन अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पूरी कौम अपने मुहाफिजों के शाना बशाना खड़ी है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का यौम तकबीर पर पैगाम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ये कहते हैं कि एटमी कुव्वत होने के बावजूद हमेशा अमन और सलामती को तरजीह दी। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी कौम को यौम तकबीर बहुत बहुत मुबारक। 28 तारीख हमें याद दिलाती है कि किस तरीके से दुश्मन के जवाब में पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की अफवाज ने उस वक्त ये फ़ैसला किया, पाकिस्तानी कौम ने ये फ़ैसला किया कि हम किसी के सामने दबेंगे नहीं और हमने इस कौम को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। 28 मई 1998 को हुकूमत, पाक अफवाज और कौम ने ताकतवर कुव्वतों के सामने ना झुकने का तारीखी फैसला किया। पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ी बलूचिस्तान ने हमेशा अपना सीना दिफा के लिए पेश किया। उस वक्त के वज़ीर आला अख्तर मेंगल का वज़ीर आज़म की गाड़ी ड्राइव करके चागी तक जाना एक तारीख का अहम बाब है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यौम तकबीर को तजदीद अहद का दिन करार दिया और दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने का आज़्म ज़ाहिर किया। बलूचिस्तान की उस वक्त की हुकूमत जो सरदार अख्तर जान मेंगल साहब की सरबराही में थी, वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ड्राइव किया। ये एक ऐसा मैसेज है पाकिस्तान के लोगों के लिए कि बलूचिस्तान के लोगों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए अपना सीना खुला। 28 मई को पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला है। अजीम कामयाबी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के जौहरी विजन का तसलसल है। बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल दिफा मज़ीद मजबूत किया। सेनेटर शहरी रहमान का यौम तकबीर पर पैगाम। खालिद महमूद सदीक़ी ने कहा कि एटमी कुव्वत बनकर साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि एटमी सलाहियत की बदौलत पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हो चुका। मिना में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। FC डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दिलाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब की शरीफ मेडिकल सिटी हॉस्पिटल में ईद के रोज सर्जरी। मरियम नवाज घर मुंतकिल हो गईं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक वज़ीर आला ने अस्पताल में सूबे में ईद पर सिक्योरिटी और सफाई समेत तमाम उमूर की बराह रास्त निगरानी की। पंजाब में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर NCCIA का बड़ा क्रैकडाउन। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला में कार्रवाइयां। 11 अफराद ज़ेरे हिरासत।
लाहौर पुलिस ने सब्जाजार और काहना पुलिस ने बकरे चोरी करने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार किए। मुलजिमान से चोरी शुदा 2 बकरे और मोटरसाइकिलें बरामद। मुलजिमान कुर्बानी के जानवर चोरी करके मंडी में सस्ते दामों फरोख्त करते थे। कराची के इराक़े बल्दिया 3 नंबर पर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 2 अफराद जाँ बहक। पोर्ट कासिम अब्दुल्ला गोट के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम से एक शख्स जान से गया। 2 अफराद जख्मी हुए। मुल्क का बेशतर हिस्सा हीट वेव की लपेट में। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। नवाबशाह, दादू, मोहनजोदाड़ो और तुर्बत मुल्क के गर्म तरीन इलाके। पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहर गर्मी से मुतासिर। महकमे मौसमियात ने मुल्क में पारा 4 से 6 डिग्री जायद रहने का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 40 डिग्री तक महसूस की गई। इसराइल के लेबनान पर अंधाधुंध हमले। 2 बच्चों समेत 8 अफराद शहीद। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 15 हो गई। सहूनी फौज की जानिब से बैरूत समेत लेबनान में 135 हमले। हिजबुल्लाह के अहदाफ को टारगेट करने का दावा। शिमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में मजलूम फलस्तीनी और लेबनान का मजाक उड़ाने वाली सहूनी फौजी मारी गई। अमरीका के ईरान और ईरान के कुवैत में हमलों के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $96 फी बैरल पर ट्रेड। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली। फ्रांस के वैलेंटिन रॉयर को शिकस्त देकर तीसरे राउंड में पहुंच गए। पैलेस क्लब ने यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। इंग्लिश क्लब ने हस्बानवी क्लब राय विवेकानो को फाइनल में 1 गोल से शिकस्त देकर पहली बार यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग का टाइटल जीत लिया। जर्मनी के शहर लेप्सिक में एक दिन पहले शिकस्त खोर्दा टीम के हक में बड़ी रैली निकाली गई। ईद डबलिन में, लेकिन समा पाकिस्तान जैसा। पाकिस्तान वुमेन टीम ने घर से दूर आयरलैंड के शहर डबलिन में ईद बनाई। टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों के लिए मेहंदी और चूड़ियों का इंतजाम किया। भारत में स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी का मुजस्समा चोरी होने का खदशा। कोलकाता हुकाम ने रस्सियों से मुजस्समा बांध दिया। गुज़श्ता साल लायनल मेसी का दौरा भारत नाक़िस इंतजामात का शिकार हुआ था। ईद के दूसरे और छुट्टी के आखिरी रोज नॉन स्टॉप तफरी। किसी ने पार्क्स का रुख किया तो कोई चिड़ियाघर जा पहुंचा। बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला, झूलों का लुत्फ उठाते रहे।